محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، جو شخص اسلام لایا وہ کامیاب ہے. ورزق کفافا، اور اس کو بھی قدر کفایت رزق مل گیا. وقنعه اللہ بما آتاه، اور اللہ تعالی نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قد افلح من اسلم، جو آدمی اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، وہ کامیاب ہو. حقیقت میں کامیاب ہے ہی وہی شخص جس کو ایمان والی دولت نصیب ہوگی، اسلام والی دولت نصیب ہوگی. لیکن آج کل ہمارا ذہن سوچ یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس دولت ہو، گاڑیاں ہوں، گھر اچھا ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جو اسلام لے آیا، ایمان لے آیا. قیامت کا جب دن ہوگا نا تو بعض ایمان والے لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا اور زندگی میں بہت سارے گناہ بھی ہوئے ہوں گے، تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے. یعنی ان کی صفائی ہوگی. جیسے سنیارے کے پاس سونا لے جائیں نا، وہ چیک کرنے کے لیے یا اس کی صفائی کرنے کے لیے آگ میں ڈالتے ہیں کہ اس کی صفائی ہو جائے. تو اسی طرح اسلام والے مسلمان جو ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے، جو گناہ کر کر کے ان کے اوپر میل کچیل جمی ہوئی ہے نا، اس کی صفائی کے لیے اللہ پاک جو ہے نا کچھ دیر کے لیے ڈالیں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور نہ جانے پھر کتنا دن وہاں رہنا پڑے. اللہ بغیر حساب کتاب کے معاف فرمائیں. تو کافر لوگ پھر تانا دیں گے مسلمانوں کو، ان کلمہ پڑھنے والوں کو کہ ہم تو کافر تھے اس لیے جہنم میں جل رہے، تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے، تم تو مسلمان تھے، تم کیوں جہنم میں جل رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ پاک فرشتوں کو فرمائیں گے میرے فرشتوں جہنم سے نکال لو ہر اس آدمی کو، من اخرجوہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، ایک رئی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہے، جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج. سبحان اللہ. اس وقت پھر کافر جو ہے نا کیا کہیں گے؟ حسرت کریں گے. قرآن نے اس کو نقل کیا، فرمایا کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، افسوس کریں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی نام کے تو چلو مسلمان ہو جاتے، آج جہنم کی آگ سے تو بچ جاتے. فرمایا اس وقت پھر کافر کہیں گے کہ یا اللہ ہم سے جو ہے ساری دنیا کے، اگر ان کے پاس اتنا دولت ہو کہ زمین اور آسمان کے یہ جتنا خلا ہے سارا سونے چاندی پیسوں سے بھر جائے، اور وہ اللہ پاک کو کہیں کہ یا اللہ یہ ہم سے دولت لے لے، ہمیں آگ سے بچا لے. فرمایا فلن یقبل، ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، جہنم میں جانا پڑے گا. فرمایا کہ کہیں گے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، میری بیوی کو ڈال دے، میرے بچوں کو ڈال دے، میرے رشتہ داروں کو ڈال دے، سارے خاندان کو ڈال دے جہنم میں، مجھے بچا لے آگ سے. اللہ پاک فرمائیں گے تو ایمان تو لایا نہیں. یہاں پر دنیا میں اگر کہیں جانا ہو تو پیسے چلتے ہیں، پیسے ہوں تو سواری پر سوار ہو سکتا ہے، چیز خرید کر سکتا ہے. فرمایا وہاں پر بھی دولت چلے گی لیکن ایمان والی دولت. اگر ایمان والی دولت باقی ہے تو پھر وہاں پر آدمی کامیاب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابھی فرمان ہم نے پڑھا ہے، فرمایا قد افلح من اسلم، جو آدمی اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، وہ کامیاب ہو گیا. حقیقت میں کامیاب ہوئی ہے. ورنہ بزرگوں دنیا یہاں رہ جائے گی، پیسے بھی یہاں رہ جائیں گے، دولت بھی یہاں رہ جائے گی. جیسے کہتے ہیں نا اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے،
सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। सारे सिकंदर आज़म ने सारी दुनिया पर बादशाही की है उसने। आज तो है ना ये पाकिस्तान का बादशाह है, ये जी हिंदुस्तान का है, ये फलन छोटे छोटे टुकड़ों के बादशाह हैं। उसने सारी दुनिया पर बादशाही की है। लेकिन जब वो आखिरी टाइम था उसका, उसने कहा कि मेरे हाथ जो है ना दोनों कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता चले कि सारी दुनिया का बादशाह है लेकिन खाली हाथ जा रहा है, कोई दौलत साथ लेकर नहीं जा रहा। असल दौलत जो है काम आने वाली वो क्या है? ईमान। दुआ फरमाए अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, अपने ईमान को महफूज करके कब्र तक जो ले जाए वही कामयाब है। अगर ईमान कब्र से पहले ख़राब कर बैठा तो फिर तो बुजुर्गों बड़ा मसला है। दूसरे आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व रुज़िक़ा कफ़ाफ़न, बक़द्र किफ़ायत उसको रिज़्क़ मिल गया वो कामयाब है। यानी इतना उसको रोज़ी मिल जाए कि उसका गुजारा चलता रहे। अगरचे जमा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है लेकिन गुजारा उसका चलता रहे, फरमाया वो आदमी कामयाब है बस। क्योंकि बुज़ुर्गों अगर रिज़्क़ के बारे में परेशानी हो तो फिर भी इंसान को बड़ी तकलीफ़ होती है, बच्चों के लिए, हाँ जी अपने लिए परेशानी होती है। तो इसलिए अल्लाह पाक से दुआ करें अल्लाह किसी का मोहताज ना बना, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये तंगी जो होती है ना आदमी को काफिर बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रन, करीब है कि फ़कीरी की वजह से लोग काफिर ना हो जाए, वरना इस दुनिया की अल्लाह के नज़दीक कोई कदर नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर मेरे नज़दीक इस दुनिया की कदर जो है ना, दौलत की, पैसे की कदर मेरे नज़दीक अगर एक मच्छर के बराबर होती ना, अल्लाह पाक फरमाता है मैं काफिर को एक घूंट भी पीने के लिए ना देता। हाँ जी, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी कोई कदर नहीं है। अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त और कदर है तो उसी की है जो अल्लाह के अहकाम पर चलता है और अल्लाह का खौफ दिल में रखता है, बस उसी की कदर है अल्लाह के नज़दीक। व रुज़िक़ा कफ़ाफ़ा, बक़द्र किफ़ायत, जिससे गुजारा चलता रहे, इतना रोज़ी मिल जाए। फरमाया वक़न्नअहुल्लाहु बिमा आता, अल्लाह पाक उसको जितना अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है उसके ऊपर किनात करने की, गुजारा करने की अल्लाह ने तौफीक भी दे दी। फरमाया वो कामयाब है। किनात इख्तियार करना यानी थोड़ा है तो उसको थोड़ा उसी के मुताबिक चलना, खर्चे उसी के मुताबिक करने, उस पर शुक्र करने की तौफीक मिल जाए तो फरमाया इसी को कहते हैं किनात। अगर पैसे इसकी आमदनी है मिसाल तौर पे 500 रुपया, ये खर्च कर लेता है 1000 रुपया और फिर परेशान होता है यार मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ फलां, फिर भी मैं परेशान हूँ। किनात नहीं करता यानी गुजारा नहीं करता, हमेशा ही खर्च करने लग जाता है, फिर परेशान हो जाता है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किनात इख्तियार करे, अल्लाह ने थोड़ा दिया है तो उसी थोड़े पर खुश हो जाए बस। मकोट सब्जल में हम पढ़ते थे, वहाँ पर एक हकीम साहब थे, हमारे दोस्त थे, कुश्ती हकीम थे, नमाजी आदमी थे, नेक थे। किराए पर उन्होंने दुकान ली हुई थी और एक मुलाजिम भी रखा हुआ था। दुकान किराए की, बिजली का बिल और मुलाजिम की तनख्वाह, खुद भी सारा दिन वहाँ। मैं वहाँ पर तकरीबन 6 साल रहा, वहाँ पर जाते थे उसके पास अक्सर। लेकिन बात यह है कि जब भी मैं गया हूँ ना उसके पास कोई मरीज़ नहीं होता था, खाली बैठा होता था। जब भी मैं गया खाली बैठा हुआ, जब भी गया खाली बैठा हुआ। एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हकीम साहब आप सारा दिन इधर बैठे हुए हैं, दुकान का किराया, बिजली का बिल, मुलाजिम की तनख्वाह, मैं तो जब आता हूँ आपके पास आता ही कोई नहीं है। मैं घंटा घंटा 2-2 घंटे आपके पास बैठता हूँ और कोई मरीज़ नहीं आता आपके पास, तो कैसे आपका सिस्टम चलता है? तो उसने बड़ी अजीब बात फरमाई, कहने लगा मौलवी साहब जो अल्लाह के ऊपर थोड़ी पर राज़ी हो जाए उसको किस चीज़ की परेशानी? जो अल्लाह के साथ थोड़ी के ऊपर भी राज़ी हो जाए उसको किस चीज़ की परेशानी? मुझे कोई परेशानी है, अगर अल्लाह ने मुझे इतना ही देना है तो मैं अल्लाह की अता पर राज़ी हूँ, बस। इसी को कहते हैं क़नाअत। फरमाया कि एक बूढ़ी औरत थी और उस मुसलमान थी, बाकी सारा इलाका जो है ना चक समझ लो, बस्ती समझ लो, सारे हिंदू थे। वो एक ही मुसलमान औरत थी जो बेवा थी, खामन भी नहीं था और वो घर में रहती थी। अल्लाह की कुदरत, घर में राशन ख़त्म हो गया।
1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, कोई चीज़ खाने के लिए पीने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है। अब इसने तीसरा दिन जब हुआ ना, इसने कहा कि अगर मैं कोई चीज़ नहीं पकाती, आग नहीं जलाती, घर में तीसरा दिन है, ये हिंदू क्या कहेंगे, मुसलमान है, अल्लाह को मानती है, अल्लाह तो इसको देता कुछ नहीं है, ये भूखी मर रही है। उसने जो है ना तंदूर में आग जलाई, आग जला के अंदर सजदे में मुसल्ला बिछा के नमाज शुरू कर, सजदे में गिर गई, अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, तौबा करना शुरू कर दी, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया, अल्लाह जैसा हाल में तूने रखा है मैं राज़ी हूँ, मैं खुश हूँ। तो उधर से जो साथ वाले हमसाए थे उन्होंने कहा आज तो हाँ जी बूढ़ी ने बड़ी आग जलाई हुई है, क्या हम जो है ना माचिस की तीली ज़ाय करते रहें, उससे आग ले आते हैं। पहले दौर में जो ना एक दूसरे से आग ले लेते थे, उससे आग ले आते हैं और तंदूर जला लेते हैं, ज़रूरी हमने तीली ज़ाय करनी है। तो आग लेने जो आई ना वो हिंदू वाले साथ हमसाए, तो क्या देखते हैं सारा तंदूर रोटियों से भरा हुआ है, रोटियां लगी हुई हैं और पक रही हैं, और वो कहती हैं ओ बूढ़ी कहाँ गई, बूढ़ी अम्मा कहाँ चली गई, रोटियां तंदूर में लग गई, जाके सजदे में गिर गई, इधर आ तेरी रोटियां पकी हुई, तू कहाँ चली गई है। तो बूढ़ी वहाँ पर रोकर अल्लाह पाक से अर्ज़ करने लगी, अय अल्लाह मैंने रोटी के लिए तो तुझे सजदा नहीं किया था, रोटी के लिए तो मैंने आग नहीं जलाई थी, मालिक मैंने तो आग इसलिए जलाई थी कि तेरा शिकवा ना हो जाए कि हिंदू ये ना कहें अल्लाह इसका रब तो इसको देता ही कुछ नहीं है। मेरा मालिक मैं तो तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ, तू मुझे कुछ भी ना दे फिर भी मैं तेरे ऊपर राज़ी हूँ। मेरा मालिक अगर तू तंदूर में रोटियाँ लगा सकता है तो मेरे कमरे में भी पहुँचा सकता है। तो फरमाया कि इसका नाम है किनात, कि अल्लाह थोड़ा दे तो उसी पर खुश रहो बस। हाँ जी, ज़्यादा लालच जो है ना, हिर्स, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह पाक ने किसी को ज़्यादा माल दिया है, वो अल्लाह के राह में ख़र्च करता है, फिर मांगता है अल्लाह मुझे ज़्यादा दे और ख़र्च करूँ, तो फरमाया फिर कोई गुनाह नहीं है, कर सकता है। अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए तो जितना भी किया जाए कम है। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान में 3 चीज़ें आज के फ़रमान में, कि वो आदमी कामयाब हो गया जो इस्लाम ले आया। दूसरे नंबर पर फरमाया कि वो आदमी जिसको अल्लाह यानी गुजारे का अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा दे, गुजारे का रिज़्क़ चलता रहे, परेशानी ना हो उसको। तीसरे नंबर पर फरमाया कि अल्लाह ने जितना दिया है उस पर गुजारा करे, किनात इख्तियार करे, फजूल ख़र्चा न करे। अल्लाह पाक ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी कामयाब है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। शब बरात है, कल रात शब बरात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चक के साथी मानते हैं, सुनते हैं, अमल भी करते हैं। अल्लाह मज़ीद हिम्मत तौफीक नसीब फरमाए। दुकानदारों को कहता रहता हूँ कि भाई आप कोई पटाखे ये चीज़ें ना ले आएँ, क्योंकि ये फजूल खर्चियाँ हैं, बच्चे ले जाते हैं। आपकी रोज़ी अल्लाह ने इसी चीज़ में नहीं रखी, और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह आपको रिज़्क़ देगा। बहरहाल दुकानदार भी मेहरबानी करते हैं, मानते हैं, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकतें दे। और अगर बच्चे पटाखे बजाते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ बच्चों को नहीं, माँ बाप को भी है। पैसे देने वाले तो माँ बाप हैं, तो उनका गुनाह माँ बाप को भी होता है। लिहाजा ये रात जो आ रही है, ये पटाखे बजाने के लिए नहीं, शोर शराब के लिए नहीं, खेल कूद के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत की रात है, इबादत की रात है। उसको ज़ाय नहीं करना, कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ इबादत हो जाए। तो जैसे हर साल शब बरात को यहाँ साथी जमा होते हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल भी कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर होंगे। अल्लाह हम सब को नसीब करे। अल्लाह इस रात की इबादतें बरकतें हमें नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब के कसूरों को माफ़ फरमाए। बिस्मिल्लाह।